हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स 14 मई 2026। चलिए शुरू करते हैं। आज of May 14, 2026, the Government of India reported a significant milestone in MSME formalization. Approximately how many total enterprises have been registered across the Udyam and Udyam Assist platform UAP? Option A 5.2 crore, option B 7.9 crore, option C 10.5 crore, option D 12.1 crore. Option B the correct answer, 7.9 crore. 7.9 crore total enterprises have been registered across Udyam and Udyam Assist platforms UAP. चलिए स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उद्यम पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? 2020 को जुलाई 1 लॉन्च किया गया था, ताकि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पेपरलेस और डिजिटल हो सके। ठीक है। According to PIB data dated May 14, 2026, over 7.9 crore enterprises are registered with 4.72 crore in the Udyam portal and 3.21 crore in Udyam Assist platform UAP. Next. According to the Future of Geothermal in India report released on May 14, 2026 by CEEW and Project Inner Space, what is the estimated technical potential for electricity generation from geothermal sources in India down to 5 km? Option A 100 gigawatt, option B 450 gigawatt, option C 1500 gigawatt, option D 11,000 gigawatt. Option B the correct answer, 450 gigawatt. The report pinpoints 450 gigawatt of technical potential for electricity generation. The 11,000 gigawatt figure refers to industrial heat potential, while 1500 gigawatt refers to cooling potential. चलिए स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट पुगा वैली कहां पर है? लद्दाख। ये ओएनजीसी द्वारा सेटअप किया जा रहा है। किसके द्वारा? ओएनजीसी बना रहा है। कहां पर है? लद्दाख पर, पुगा वैली। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE इसके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, the Kalam and Kavach 3.0 Defense Strategic Dialogue, which emphasized self-reliance and jointness for strategic autonomy, was organized on May 14, 2026 at which venue? Option A National Defense Academy, Pune. Option B Manekshaw Center, New Delhi.
ऑप्शन सी डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी एयरफोर्स स्टेशन पालम, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी The Kalam and Kavach 3.0 Defense Strategic Dialogue, which emphasized self-reliance and jointness for strategic autonomy, were organized at which venue? Manekshaw Center, New Delhi. Option B. इस इवेंट का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कवच का नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका फोकस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है। कलाम एंड कवच 3.0, ऑप्शन बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह addressed the Kalam and Kavach 3.0 dialogue held at the Manekshaw Center in New Delhi via video message. Next, the 7th edition of the Logistics is across different states leads 2025 report was highlighted in national news on May 14, 2026. Which department is responsible for releasing this flagship assessment? Option A Department of Post, option B Niti Aayog, option C Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, option D Ministry of Road Transport and Highways. Option C is the correct answer, Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT. DPIIT का मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। A roadmap released on May 14, 2026 outlines the strategy to achieve a 100 gigawatt nuclear power plant capacity for India by which year? Option A 2030, option B 2040, option C 2047, option D 2070. Option C is the correct answer, 2047. Option C. चलिए स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। न्यूक्लियर पावर में सबसे बड़ा प्लांट कहां पर है? कुंदनकुलम तमिलनाडु पर पड़ता है। NPCIL सारे कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट्स को ऑपरेट करती है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा
ने डिजाइन किया था थोरियम बेस्ड एनर्जी के लिए, ठीक है। The roadmap highlighted by Vision IAS and other sources on May 14, 2026 targets 100 gigawatt of nuclear capacity by 2047 to ensure energy security and decarbonization. Next, on May 14, 2026, External Affairs Minister S. Jaishankar met with Foreign Minister of Egypt Badr Abdelati on the sidelines of which meeting in New Delhi? Option A, G20 Sherpa meeting. Option B, BRICS Foreign Ministers meeting. Option C, SCO Summit. Option D, BIMSTEC Ministerial meeting. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में मिले थे, ठीक है। ऑप्शन बी। अगर स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन कब हुआ था ज़्यादा ना, हाल ही में 2024 में 5 नए मेंबर्स ऐड हुए थे। कौन कौन है? इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान भी इसमें शामिल हुआ था, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ईरान ने बहुत ही सुर्खियों में रहा है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान 2024 में ज्वाइन किया था, ऐड हुआ था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और यूएई भी ज्वाइन किया था, ऐड हुआ था। याद रखिए ब्रिक्स का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। कहां पर है? एनडीपी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। टू बी नोटेड, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी हर साल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट होती है, ठीक है। याद रखिए कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी हर साल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट होती है। नेक्स्ट, on May 14, 2026, the RBI announced an underwriting auction for government securities worth Rs 32,000 crore. Which platform is used by primary dealers to submit bids for this auction? Option A, SFMS. Option B, RTGS. Option C, eKuber. Option D, NEFT. Option C is the correct answer, eKuber. Option C. eKuber is used by primary dealers to submit bids for government securities. GSEC इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलिए eKuber के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। इस पर GSEC, ट्रेजरी बिल्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की ऑक्शन होती है, ठीक है।
इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? प्राइमरी डीलर्स सबमिट बिड्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर, याद रखिए ई कुबेर। नेक्स्ट, तो इंडिया एआई मिशन अंडर मिटी signed an MOU on May 14, 2026 with which non-profit organization to build an inclusive AI ecosystem through data collaboration. ऑप्शन ए कार्या, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी नास्कॉम फाउंडेशन, ऑप्शन डी बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्या। इंडिया एआई मिशन एक एमओयू साइन किया, किसके साथ? ना कार्या के साथ, टू बिल्ड एन इंक्लूसिव एआई इकोसिस्टम थ्रू डाटा कोलैबोरेशन। ऑप्शन ए कार्या। नेक्स्ट, during the review meeting of SDG India Index 4.0 held on May 14, 2026, which two states were highlighted as top performing states in the SDG ranking? Option A Gujarat and Tamil Nadu, option B Kerala and Uttarakhand, option C Sikkim and Goa, option D Karnataka and Andhra Pradesh. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केरला एंड उत्तराखंड। ऑप्शन बी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग ने इसे रिलीज करता है। नीति आयोग इसे रिलीज करता है। इसमें 17 गोल्स, 17 गोल्स और 100 प्लस इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग इसे रिलीज करता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। नेक्स्ट, डॉक्टर डायना पाटन ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग इन्फॉर्म्ड दैट Kerala and Uttarakhand remain among the top performing states in the current SDG rankings. Next, reports on May 14, 2026 confirmed that India's agricultural exports surpassed a significant milestone in financial year 2025-26 despite global trade barriers. What is the value? Option A $30 billion, option B $45 billion, option C $50 billion, option D $75 billion. Option C is the correct answer, $50 billion. Next, on May 14, 2024, which state government scheme titled Annapurna Bhandar was highlighted for its focus on women welfare and food security? Option A Odisha, option B West Bengal, option C Bihar, option D Jharkhand. Option B is the correct answer, West Bengal. West Bengal state government scheme titled Annapurna Bhandar was highlighted for its focus on women welfare and food security. Option B.
नेक्स्ट, which Middle Eastern country announced its intention to join the India-led International Big Cat Alliance (IBCA) on May 14, 2026? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी ओमान। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में इंटेंशन जताया है कि वो ज्वाइन करना चाहता है कहां पर, आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। चलिए इसका स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च्ड बाय इंडिया कब हुआ है ना, पीएम मोदी ने इससे अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर लॉन्च किया था। इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही सेटअप किया जा रहा है। ये अलायंस 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कौन कौन है वो, चलिए जानते हैं। 7 बिग कैट्स कौन कौन है। इससे बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव आने में बहुत ही चांसेस है। सो याद रखिए कौन सा है 7 बिग कैट्स। टाइगर, लायन, लियोपार्ड, पुमा, जैगुआर, चीता। कौन कौन है, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, पुमा, जैगुआर, चीता। ये दोनों तो ब्रांड हो गए, ये दोनों आपको याद रह जाएंगे, टाइगर, लायन। बाकी रहा लियोपार्ड और चीता। नेक्स्ट, Saudi Arabia officially moved to join the India-led Big Cat Alliance to support global conservation efforts। ठीक है, चलिए A report released by IBM and India AI on May 14, 2026 emphasizes sovereign AI as a foundational guardrail. What is the primary focus of sovereign AI in this context? sovereign AI का मतलब क्या है? ऑप्शन ए एक्सपोर्टिंग AI सर्विसेज, ऑप्शन बी decisive shaping of AI strategy through localized cloud and data infrastructure, option C replacing human governance with AI, option D complete ban on foreign AI models। option B is the correct answer, decisive shaping of AI strategy through localized cloud and data infrastructure।
इसका मतलब है कि देश अपना एआई मॉडल खुद के डाटा और लोकल लैंग्वेजेस पर ट्रेन करें। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? भाषिनी प्रोजेक्ट। भाषिनी प्रोजेक्ट याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। भाषिनी प्रोजेक्ट जो सॉवरेन एआई के लिए फोकस्ड है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं, क्या लिखा है। Sovereign AI focuses on India decisively shaping its AI strategy via local cloud infrastructure and data sovereignty. Next, the government reaffirmed the National Coal Gasification Mission on May 14, 2026. What is the target for coal gasification to be achieved by 2030? Option A 50 MT, option B 100 MT, option C 150 MT, option D 200 metric ton. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 100 MT। टारगेट कितना है? 100 MT। ठीक है, बाय 2030। कोल गैसिफिकेशन ये क्यों किया जाता है? क्या है प्रोसेस? इसमें कोल को सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट किया जाता है। कोल गैसिफिकेशन क्या है? इसमें कोल को सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट किया जाता है जो क्लीन फ्यूल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, the scheme aims to realize the target gasification of 100 MT of coal by 2030 under National Coal Gasification Mission. Next, who was named the ICC Men's Player of the Month for April 2026 as announced on May 14, 2026 following a series victory over New Zealand? Option A Nahid Rana, option B Subman Gill, option C Ajay Kumar, option D Jatinder Singh. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नाहिद राणा। बांग्लादेश के हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट, बांग्लादेश पेसर नाहिद राणा was named the ICC Men's Player of the Month for April 2026. Laura Olvarath, who won the ICC Men's Player of the Month of April 2026, announced May 14, achieved this feat primarily due to her performance against which team? Option A Australia, option B India, option C England, option D West Indies. Against which team? Option B India.
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। नेक्स्ट, in a significant observation on May 14, 2026, the Supreme Court of India stated that majoritarianism cannot trump dash while testing the validity of laws. Majoritarianism cannot trump dash. Option A, executive power. Option B, constitutionalism. Option C, legislative intent. Option D, parliamentary sovereignty. Option B is the correct answer, constitutionalism. Option B. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है और उससे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। इससे जुड़ी दो चीजें आती है, क्या क्या? एक आती है आर्टिकल 13, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 13 क्या कहती है? ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी ऐसे लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सके जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। ठीक है, चलिए फिर से समझते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी ऐसे लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सके जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर ये क्या है? इंडिया में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। नेक्स्ट, the Supreme Court observed that while India is a constitutional democracy, majority rules prevails only within the bounds of constitutionalism. ठीक है, नेक्स्ट, in the northeastern region NER district SDG index 2.0। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जब बात आती है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, हर एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER district SDG index 2.0 review held on May 14, 2026, which district recorded a composite score of 76.29, ranking 10th out of 121 districts? Option A, Aizawl. Option B, Dimapur. Option C, Shillong. Option D, Imphal.
दीमापुर recorded a composite score of 76.29, ranking 10th out of 121 districts. ठीक है, दीमापुर कहां पर पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहां पर पड़ता है? नागालैंड। याद रखिए, ये नागालैंड का सबसे बड़ा सिटी और मेजर कमर्शियल हब है। ठीक है, दीमापुर ये नागालैंड का सबसे बड़ा सिटी और मेजर कमर्शियल हब है। अगर एनईआर एसडीजी इंडेक्स की बात किया जाता है तो इससे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, याद रखिए डोनर, इसका फुल फॉर्म बाद में मैं बोलता हूं, इससे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर और नीति आयोग ने मिलकर इसे निकालते हैं। इसका फोकस नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स के 120 प्लस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के ट्रैक की जाती है। इसका मेन फोकस क्या है ना, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट जो हैं वो मिलाकर जो निकलते हैं कितना डिस्ट्रिक्ट, 120 प्लस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट का ट्रैक की जाती है। ठीक है, डोनर इसका फुल फॉर्म क्या है? DONER। एक मूवी आता है ना डोनर, आयुष्मान खुराना की, वो डोनर नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कौन सा है, या एन का फुल फॉर्म इसका मतलब क्या है, ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, या डी का पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा, या फुल फॉर्म ही पूछ लेगा वो। याद रखिए, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर। नेक्स्ट, Dimapur district in Nagaland saw significant improvement, scoring 76.29 and securing rank 10. इसका रैंक 10 ये भी पूछ लेगा इन द लाटेस्ट NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। नेक्स्ट, याद रखिए टू बी नोटेड, मैं जब बोलता हूं ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसको आप याद रखिए या लिख लीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आपको याद ही रखना पड़ेगा। कुछ चीजें होता है उससे रिलेटेड होता है या उसी प्लेस के रिलेटेड होता है, इसलिए मैं बोलता हूं टू बी नोटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूनियन MSME मिनिस्टर जीतन राम मांझी laid the foundation stone for a new MSME technology common facility center TCFC on May 14, 2024 in which city? Union Minister MSME Minister Jitan Ram Maji laid the foundation stone for a new MSME technology common facility center TCFC on May 14, 2024 in which city? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेंगलुरु। टू बी नोटेड, पिनया इंडस्ट्रियल एरिया ये बेंगलुरु में है और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब्स में से एक है। कौन सा? पिनया इंडस्ट्रियल एरिया। ये बेंगलुरु में है और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब में से एक है। नेक्स्ट, द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड एट द
Pinnaya Industrial Area in Bengaluru to strengthen technology access for MSMEs. Next, which specific project in Himachal Pradesh was highlighted on May 14, 2026 as a successful implementation of geothermal energy for cold storage? Option A, पुगा वैली प्रोजेक्ट। अभी बात की कि पुगा वैली क्या है, पुगा वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन बी, तापरी जियोथर्मल कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी, मणिकरण पावर प्लांट। ऑप्शन डी, टट्टापानी थर्मल यूनिट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, टापरी जियोथर्मल कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी, Tapri geothermal cold storage project in Himachal Pradesh was highlighted on May 14, 2026 as a successful implementation of geothermal energy for cold storage. Option B. Next. थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए एक लाया हूँ QR कोड, आप स्कैन कीजिए, जाइए विजिट कीजिए। और ये मेरा यूट्यूब है, इंस्टा है, टेलीग्राम चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जाइए प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।